Good morning, students. We will start chapter number 5, admission of a partner. Question number 14, page number 211. Now we will see the question first. Rutvi and Princey are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. Balance sheet is given, after that adjustment is given. They admitted Manan as a partner on 1st April 2017 on the following terms. We will see the terms and condition of partnership. Manan will bring his personal furniture of 75,000 as capital. Manan will not bring cash, he will bring 75,000 furniture as capital. Out of the creditors, 60,000 are payable to Manan, which is to be transferred to his capital account. That means 60,000 we have to pay to Manan. It is included in creditors. So that will be transferred to his capital account. That will be converted into capital. One is furniture 75,000. That will be converted into capital. And second 60,000 creditors will be converted into capital. That means Manan's capital. Manan का जो capital है वो 60,000 plus 75,000. Okay, that is 1,35,000. That is his capital. Then तो ये एडजस्टमेंट जो है वो क्रेडिटर्स में मार्क कर दो. सेकेंड एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स में मार्क कर दो. सेकेंड 2 नंबर. Manan will be given 1/5 share in future. Manan को 1/5 share देना है. Manan will bring 45,000 as goodwill in cash. 45,000 goodwill लेकर आएगा. Goodwill of the firm is valued at 3 lakhs. जब भी goodwill firm का दिया होगा तो you have to verify कि वो जो goodwill नया पार्टनर लेकर आया है वो पूरा लेकर आया है कि कुछ कम लेकर आया है. बराबर है. तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख इंटू 1/5 करने का. व्हाट इज 3 लाख इंटू 1/5? दैट इज 3 lakhs इंटू 1/5. दैट इज इक्वल टू 60,000 लेस brought. Goodwill, how much he brought? 45,000. 15,000 that is not brought. That is goodwill not brought by new partner. 15,000 रुपया नहीं लाया है. 60,000 लाने का था उसको और वो लाया है खाली 45,000. So 15,000 he has not brought goodwill. After that, credit purchase of 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock. 15,000 परचेस किया था क्रेडिट पे, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो वो क्रेडिटर्स में आएगा. तो क्रेडिटर्स में मार्क कर दो एडजस्टमेंट नंबर 6. क्रेडिटर्स में मार्क कर दो एडजस्टमेंट नंबर 6. दूसरा वाला जो परचेस है वो डायरेक्टली इट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000. स्टॉक में मार्क कर दो 7 नंबर. लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000. वर्कमैन कंपनसेशन में मार्क कर दो लायबिलिटी 8 नंबर. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड. इसको अलग से कर देंगे क्योंकि इसमें अक्रूड इंटरेस्ट दिया नहीं है किधर भी, तो वी विल रिकॉर्ड इट सेपरेटली. बराबर है. तो इसमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ेगी हमको? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल प्रिपेयर, राइट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल प्रिपेयर. सेकेंड इज पार्टनर्स, yes, current account we will prepare. In the balance sheet bank account is given, so we will prepare bank account. Okay, we'll start solving the question.
We will start from liability side. Workman's profit sharing fund. It will be recorded directly in the balance sheet. You can try the balance sheet, okay, afterwards. This will be recorded directly because it's a liability. 30,000 will be recorded on the liability side, balance sheet. Creditors. Creditors, what's the adjustment? Creditors, what we will do? Adjustment number 2. Out of the creditors, 60,000 are payable to Manan. So that means we will deduct 20,000 from 60,000 from creditors. Creditors कितने हैं? 1,20,000. तो बैलेंस शीट में तुम लोग को 60,000 क्रेडिटर्स माइनस करना है, बराबर है। और सेकेंड इफेक्ट वो कैपिटल में चले जाएगा, उसका कैपिटल हो जाएगा, मनन का कैपिटल हो जाएगा। जब बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे तो इसका 60,000 प्लस वो दूसरा 75,000 फर्नीचर लेके आता है, तो 135 तुम लोगों को कैपिटल लिखना है डायरेक्टली बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, इट विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल और ये इसका पार्टनर, नया पार्टनर का, तीनों का कैपिटल रिकॉर्ड होगा डायरेक्टली, ओके। चलो अभी उसके बाद में क्रेडिटर्स में सिक्स्थ एडजस्टमेंट है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock. क्रेडिट परचेज करते तो क्या होता है? परचेस और लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर्स में ये प्लस करना है। ये 15,000 विल बी एडेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट प्लस, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा उसका? परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इफ यू रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखते थे? परचेस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखते थे? डेबिट। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। परचेस अकाउंट 15,000। चलो उसके बाद में नेक्स्ट इज करंट अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000। उसका एडजस्टमेंट क्या दिया है देख लेते हैं। 8 लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000। बैलेंस शीट में दिया है 60,000 एंड दे से लायबिलिटी इज ओनली 28,000। तो बाकी का क्या? 32,000 जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन में जब भी प्रॉफिट होता है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। और लॉस होता है तो क्या करते हैं हम लोग? रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो रीवैल्यूएशन में, अगर इसमें लायबिलिटी कम हो जाता है तो इट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि वर्कर ने कुछ क्लेम नहीं किया, ओनली 28,000 पे करना है, तो बाकी का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। So we'll write here by workman compensation reserve. How much will be distributed? 32,000. 32,000 कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो 5:3. तो 20 and 12, right? Just calculate. 20,000 and 12,000 आएगा, राइट? 20,000 and 12,000. 20,000 and 12,000 that will be distributed in the old ratio 5:3. ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में, बराबर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर दैट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंस इधर ऊपर लिख देने के हैं स्टार्टिंग में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द बैलेंस? 1,50,000 and 1,95,000. 1,50,000 and 1,95,000। ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किधर लिखेंगे? डायरेक्टली बैलेंस शीट। कैपिटल और करंट अकाउंट जब भी क्वेश्चन में दिया होता है दैट मींस कैपिटल फिक्स है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उसका अकाउंट नहीं बनाने का। अकाउंट कब बनाते हैं? जिसमें चेंजेस होता है।
तो करंट अकाउंट में सब एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैपिटल में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। सब एडजस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। बराबर है। चलो अभी एसेट साइड पे क्या दिया है? बैंक किधर लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 60,000 बैंक बैलेंस है। डेटर्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेने का। स्टॉक में 7 नंबर का एडजस्टमेंट है। लेट्स सी स्टॉक कितना दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000। 45,000 का स्टॉक जो है उसका 36 वैल्यू है, तो कितना कम हो गया? 36 और 45 का डिफरेंस 9,000। सो 9,000 लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। बराबर है। 45,000 माइनस 36,000। और स्टॉक कितना है टोटल बैलेंस शीट में? 60। और उसमें क्या करने का? अभी जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो 9,000 कम करके लिखने का। बैलेंस शीट में whenever you record in the balance sheet तो 60,000 में से ये 9,000 कम कर देने का। बराबर है। 45,000 में से नहीं, टोटल स्टॉक में से। टोटल स्टॉक इज 60,000, ये 9,000 कम हो गया है, तो बाकी का 51,000 रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट में 60,000 माइनस 9,000, बराबर है। टोटल 60 डायरेक्ट बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। इफ यू शो माइनस 9,000 दैट विल ऑल्सो डू। चलो देन बिल्डिंग देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख देने का आउटर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम। चलो अभी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। मनन विल ब्रिंग फर्नीचर ऑफ 75,000 एज कैपिटल। ये फर्नीचर लेकर आया, तो ये फर्नीचर बैलेंस शीट में भी जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करने का, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड 75,000। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में ले लेने का इसका 75,000 ये, और दूसरा उन लोग ने 60,000 का क्रेडिटर्स बोला है, तो क्रेडिटर्स में 60,000 माइनस होगा और दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो 60 एंड 75 135 कैपिटल में लिखने का बैलेंस शीट में मनन का, यानी रुत्वी प्रिंसी के नीचे। रुत्वी का 120 है, 1,20,000, प्रिंसी का 90,000 है, और इसका नए पार्टनर का मनन का रिकॉर्ड होगा 1,35,000। चलो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव कंप्लीटेड, सेकंड वी हैव कंप्लीटेड, थर्ड मनन विल ब्रिंग 45,000 एज गुडविल इन कैश। गुडविल 45,000 लेकर आता है, किधर रिकॉर्ड करते हैं? एक तो इधर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 45,000 लेकर आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय कौन से रेशियो में करेंगे? यस, ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइस रेशियो। तो 45,000 को 5:3 में डिवाइड करो, कितना आता है अमाउंट बताओ? 28,125 एंड सेकेंड का 16,875। गुडविल इज डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइस रेशियो। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है और एक ही इंफॉर्मेशन दिया है 1/5 2/5 नए पार्टनर का, तो ओल्ड रेशियो ऑटोमेटिकली विल बी टेकन एज सैक्रिफाइस रेशियो। ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है वो। चलो फिर बाद में, और वो गुडविल जो नहीं लाता है, कितना गुडविल नहीं लाया था वो? 15,000। तो 15,000 जो है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करने का, क्योंकि इधर कैपिटल फिक्स है, तो मनन्स करंट अकाउंट
15,000 को 5:3 में डिवाइड करने का कितना आता है बताओ? 15,000 को 5:3 में 9375 पहलेगा 9375 और सेकंड का 5625 9375 एंड 5625 ओके। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हाँ इसका सेकेंड इफेक्ट, इसको मनन को डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे लिखने का टू मनन में 9375 5625 ये दोनों को रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे भी करना है क्योंकि इधर हम लोग ने लिखा है मनन्स करंट अकाउंट, मनन करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट का मतलब उसको डेबिट करना है। मनन के पास से लेकर पैसा हम लोग ने रुत्वी और प्रिंसी को दे दिया है, रुत्वी एंड प्रिंसी को पैसा दे दिया है, राइट? गुडविल का पैसा मिल गया। अभी क्रेडिट परचेस ऑफ 15,000 वो हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया, परचेस की एंट्री, स्टॉक की एंट्री कर दी है, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपल्शन रिकॉर्ड कर दिए। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। किधर आएगा अक्रूड इंटरेस्ट? बैलेंस शीट में आएगा, किधर? एसेट्स में। सो एसेट्स में यू हैव टू रिकॉर्ड। सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में किधर आएगा? क्रेडिट साइड, इट इज अ प्रॉफिट। जब तुमने रिकॉर्ड किया एसेट्स में तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। ओके, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट एंड नाउ यू कैन सी डेबिट एंड क्रेडिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर टैलीड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोथ द साइड्स आर सेम, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। फर्स्ट टाइम आई थिंक वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर तुम्हारा एग्जाम में ऐसा आ गया तो तुम लोग डर जाएंगे कि भाई ये तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस तो आता ही है। सो समटाइम्स इट विल बी सेम, बराबर है। उन लोग ने पर्पसली ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि बैलेंस सेम आता है दोनों का, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज सेम, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट नहीं है कोई भी लॉस नहीं है, राइट? ओके, नाउ वी विल क्लोज द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैपिटल में, कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी इधर, क्यों नहीं आएगी कैपिटल की एंट्री बैंक में? क्योंकि उसने फर्नीचर लेके आया है और क्रेडिटर्स को कन्वर्ट किया, कैश नहीं लाया है, तो कैश की एंट्री नहीं आएगी इसमें, कैपिटल की नहीं आएगी। सो इट इज 1,05,000 so this will be by balance carried down, so it is 1 lakh। ये किधर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में? एसेट्स में, एसेट्स में बैंक करके 1,05,000 रिकॉर्ड करना है एसेट्स में। नाउ वी विल क्लोज द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के टोटल्स बताओ मेरे को कितने आते हैं? फर्स्ट वाले का कितना आता है? ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक द टोटल, दैट्स ऑल। क्रेडिट माइनस डेबिट करना है और नए पार्टनर का, मनन का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल 15,000 आएगा, मनन का दैट विल बी टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जब करेंगे तो मनन का जो बैलेंस है वो किधर आएगा बैलेंस शीट में? एसेट्स में आएगा। इट इज अ डेबिट बैलेंस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन एसेट्स। और बाकी दो पार्टनर्स का जो है वो तुमको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, करंट अकाउंट करके क्रेडिट साइड पे। ओके, एंड बैलेंस शीट यू कैन प्रिपेयर। अब ये क्वेश्चन में नया क्या था, नया एडजस्टमेंट क्या था? व्हाट वाज द न्यू एडजस्टमेंट? मेनी एडजस्टमेंट वेर डिफरेंट, बराबर। एक तो कैपिटल, कैपिटल जो लेकर आया नया पार्टनर, वो उसमें क्या नया था?
फर्नीचर लेके आए और कैपिटल कन्वर्ट किए, तो वो नया था। दूसरा गुडविल नहीं लेकर आता है तो करंट अकाउंट को डेबिट करना है, तो करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में एंट्री आई थी, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे एंट्री आई थी, बराबर ना, तो वो डिफरेंट था। और कुछ अलग था ये क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में टैली हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट वाज टैलीड, तो व्हेन इट इज टैलीड ऐसा नहीं समझने का कि क्वेश्चन में गलत मिस्टेक है या तुम्हारी मिस्टेक है, राइट? कभी कभी हो सकता है ऐसा, अगर पर्पसली सेम दिया होगा टैली करने के हिसाब से, डेबिट एंड क्रेडिट सेम, तो टैली हो सकता है, बराबर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।